Mr. Goyal. It's the takeaway from the main takeaway from this budget has been the huge sop for the agriculture sector, more particularly I would say for the farmers. But 6,000 rupees a year, मतलब 500 रुपए महीना, उससे फार्मर जो है, जो किसान है, वो क्या डिग्निटी की जिंदगी जिएगा, वो क्या ट्रैक्टर हायर पे लेगा, वो क्या बीज खरीदेगा? हाउ विल दैट? स्मिता जी, ये फार्मर की कोई 500 रुपए महीना या इस प्रकार से देखने के बदले ये एक तरीके से सप्लीमेंटल इनकम करने के लिए हमने उनका सम्मान किया। आज किसान हमारे अन्नदाता है। दे हैव गिवन अस फूड सिक्योरिटी इन दिस कंट्री। दे हैव over the years with division of land into smaller pieces, they have their own difficulties and stress. Now sitting over here in an air-conditioned room, it's very difficult for us to imagine that how important this 6,000 rupees is in the life of a small farmer, in the life of his family. This 6,000 rupees may get him his children's education. This 6,000 rupees will help him buy some seed, maybe buy some fertilizer, get some value addition there. This is not to be viewed, it's not something like a khairat, it's not a dole. Please don't misunderstand this or communicate to anybody that this is any kind of subsidy. This is the respect that we are giving to the farming community. 12 crore farming families getting 6,000 rupees a month is a never before, a year is a never before scheme. Over the next 10 years, we'll be giving 60,000 crore rupees to every family. How is it not a dole, sir? I mean, if it is, isn't it? If you're giving because we are not linked it to any land holding, we have not linked it to any other parameters. This is something that is being given back to them for the work that they've done, as a respect for the work that they are doing. And please look at the past. Never before has anybody bothered about the farmers as much as Prime Minister Modi. After all, if people were concerned, why did they not announce MSP for all the 22 crops? Why is it that what we procure in 1 year was not procured by the Congress in 5 years of their government? That they never bothered about health care for the farmers, which we have bothered through Ayushman Bharat? Why is it that they did not provide electricity to the remotest corners of the country and ensured every home, every child gets electricity 65 years after independence? But now all of these are questions people are asking of the Congress, and they appreciate that Prime Minister Modi has consistently, year after year, ensured that they keep getting more and more benefit. This is a series of benefits. There is one more huge step, and look at the juxtaposition. 75,000 crores given in 1 year, but sustainable, not one time. So for the next 10 years, you will be giving 7.5 lakh crores to rural India, to the farmers. What did the Congress do that the 10 years that they were in power? Neither did they give MSP, neither did they buy the material at MSP, whatever they announced. Neither did they do any scheme other than a loan waiver, which was announced in 2008 without any budgetary provision. 2009 also there was no budgetary provision. Left to the next government to repay after 2009. All of 52,000 crores given to a select group of farmers. The CAG reports speak for themselves. They're full of holes, full of irregularities. Wrong people were given the farm loan waiver. Possibly political interference came in play. And we saw the UPA accept making noise. The Congress accept making tall. Never delivering on those problems. But you know, these kind of questions to the Congress party would have been asked in 2014. You've had 5 budgets, and every budget is supposed to have been an agri budget. It's supposed to have been a budget for the farmer. Garibon ka budget, garibon ka budget. We kept hearing this kisan ka budget. All your agriculture ministers, prime minister, everybody said it's agriculture. Then why is it that ab jaake, when it is just an interim budget, you have brought about this? So how is it not a sop? I think you're missing the point. Over 4 years, every budget, we've added value to the farmer's income, added value to his life. Be it the fact that we gave over 15 crore, 17 crore farmers soil health cards. Be it the fact that now healthcare is available to most of these small farming families. Be it the fact that we have ensured energy security so they get electricity on time. Be it and sufficient quantity. Be it the fact that we brought neem coated urea so that people could not divert fertilizer
and use it in chemical factories and the farmer remains without fertilizer. Have you ever heard of a single agitation asking for fertilizer in the last 5 years? But we've had farmer suicides, sir. Well, so, you know, this is not as if agri-distress has not been there. You yourself... Nobody has ever claimed that. Yeah. But the issue is that what we have reached to the farmers has helped them increase their productivity, helped them increase production. That in fact has had a little bit of a cause and effect on the prices of agricultural produce. Having said that, the fact that we are encouraging them to do 3 crops in a year, so that this will be given in 3 installments of 2,000 each, encouraging them at the time of harvest to be able to add value to what they are producing. Along with that, look at the huge thrust given to food processing. Look at the huge thrust given to educating the farmers on what crops can be done better. Look at the vision I laid out, the Prime Minister's vision today, to encourage organic farming, to encourage value addition on farming, to encourage make sure everybody gets water, irrigation. The irrigation is a major thing. There are many farmers who today, after listening to your budget, when all the channels, went to farmers and said, are you satisfied with what has been offered? He said, किसान जो है वो मांगेगा क्यों, वो पैसे क्यों मांगेगा, कम से कम irrigation तो कहते हैं पानी तो ला दो हमारे खेतों में. मतलब if you as power minister could electrify all those villages, why can you not promise to irrigate every farm in this country? I think you missed out on my vision, which I had laid out, the different dimensions. One of the important dimensions was that we want to take irrigation through the micro irrigation route and through organic farming, which takes much less water, to the country as a whole, and that's going to be one of the priority areas of this government. Can you not give a time, sir, like you had an app? I believe in the next 10 years, we will make sure that everybody gets the benefit of good irrigation facilities. Unlike in the past, I come from Maharashtra. You may be aware that Maharashtra had thousands and thousands of crores of rupees spent on irrigation, but almost entirely gone into corruption. We didn't see any land, additional land getting irrigated. And unlike that, in the BJP government, in the NDA government, you'll find large tracts of irrigated land have been added over the last 5 years. But it's still in Going distress, forward, Maharashtra. Water distress is still so acute in Maharashtra. Madam, then you have not kept a pace with the work that the Chief Minister Devendra Fadnavis has done on Jal Yukt Shibir. I mean, village after village is getting free from the problem of rain-fed farming. They are creating these small ponds. They are developing these ponds in such a manner that even if 2 days there is rain, it will be sufficient to carry them through the year. You're saying 10 years. So this is exactly what you had said in your budget कि हम नींव रख रहे हैं, इमारत बनानी है. So this is a budget which is just an interim budget. You are talking... It's really an interim budget. I have not tinkered with the tax proposals or anything, except for those which are of a high priority, which would have caused inconvenience to the small taxpayers, which we had decided we have to do. Small taxpayers say, let me get to this point about the rebate for the middle class. Now that's another big takeaway that you have. इसमें confusion है, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि ये 5 लाख वाला क्या है, कितने लोग benefit होंगे? One part, some people are saying 3 crore, some are saying नहीं, 2 से 5 लाख में सिर्फ 80 लाख लोग आ रहे हैं. So what is this? मेरे पास पूरे आंकड़े हैं. स्वाभाविक रूप से जब बजट बनता है तो आंकड़ों के आधार पे ही बनता है. उसी के आधार पे 18,000 से अधिक करोड़ रुपए सालाना हमने एक प्रकार से छूट दी है मध्यम वर्गीय परिवारों को. रिडक्शन में 4,500 अधिक दी है, तो लगभग 23,000 करोड़ रुपए मध्यम वर्गीय परिवारों को टैक्स में छूट शायद ही पहले एक साथ कभी दी गई होगी. और जो सैलरी क्लास में स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसमें लगभग 3 करोड़ लोग को लाभ मिलता है, और जो 5 लाख रुपए तक की जिसकी टैक्सेबल इनकम है वो भी करीब 3.5 करोड़ के आसपास नंबर बनेगा फाइनली, जिसको ये लाभ तो फिर कितने लोगों को लाभ होगा? 3 से 3.5 करोड़ के बीच में. तो ये तो जब फाइनली टैक्स रिटर्न्स अगले साल के आएंगे उसी में फाइनल नंबर मिलेगा. हम तो अनुमानित नंबर पे ही जा सकते. 2 लाख से कम तो टैक्स वैसे ही नहीं दे रहे थे. नहीं, 2.5 लाख तक टैक्स नहीं दे रहे थे. वैसे माननीय अरुण जेटली जी ने शायद 2 साल पहले वो 2.5 का 3 कर दिया था, रिबेट देके 2,500 रुपए रिबेट दी थी कि जिन जिन की आय 3 लाख तक है उनको टैक्स नहीं भरना पड़ता था. हमने उस 3 लाख को बढ़ा के अब 5 लाख कर दिया है, पर टैक्स रेट्स को नहीं छुआ है. जिसकी आय 5 लाख के अंदर है और इसमें टैक्सेबल इनकम देखी जाती है, तो कोई इंटरेस्ट की इनकम हो, कोई प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करता है, कोई सेविंग्स में इन्वेस्ट करता है, मेडिक्लेम पॉलिसी लेता है, ब्याज देता है,
एजुकेशन लोन में, ये सब डिडक्शंस तो अलग है, स्टैंडर्ड डिडक्शन अलग है। तो लगभग पूरा मध्यम वर्गीय जो क्लास है वो ऐसे सभी को ये सब चीजें जोड़ने के बाद, उसके बाद भी अगर 5 लाख से ऊपर हो टैक्स इनकम, तभी टैक्स देना पड़ेगा। और इसमें बड़ी स्पष्टता से मैंने कहा कि मैं टैक्स प्रपोजल्स में कोई टैक्स रेट नहीं बदल रहा हूं, जो पहले था वही है। सिर्फ इतना बदलाव किया है कि जिसकी इनकम 5 लाख से कम है, सिर्फ उनकी टैक्स रिबेट देके उनको जीरो टैक्स देना पड़ेगा। Sir, you mentioned 2 crore rise in EPFO enrollment, and that is evidence of job creation. But you and formalization. Now, दोनों का संयुक्त। तो आपने आज अखबार पढ़े होंगे, तो उसमें तो सारा ये जो लीक्ड NSSO डेटा है, it is suggesting unemployment at record highs. You are going to say that it is leaked, it is not real. When is the data coming out? Obviously, I wouldn't know that the Ministry of Statistics will know. But एक और मैं आपको एक पहलू देना चाहूंगा जिस पे आप भी विचार करिए। ये जो बड़े मात्रा में नोटबंदी के बाद और ये जो कड़े कदम उठाए काले धन के ऊपर, उसके बाद जो फॉर्मलाइजेशन हुई है इकोनॉमी की, ये तो पिछले 3, 4, 5 सालों में ही हुई है। ये फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी का अभी तक किसी ने पूरी तरीके से आकलन शायद पहले कभी करा नहीं होगा। तो ये फॉर्मलाइजेशन का लाभ साधारणतः और स्वाभाविक रूप से देश की जनता को मिलेगा। आखिर जब 7.5% ग्रोथ कंसिस्टेंटली 5 साल के, लाभ कहां से, नौकरियां जा रही हैं, लाभ कहां से? नौकरियां जा रही हैं, ये आप नौकरियां है कुछ लोगों का नैरेटिव हो सकता है, लेकिन आप भी देखिए कि 7.5% कंसिस्टेंट ग्रोथ, विश्व की सबसे तेज गति से ग्रो करने वाली इकोनॉमी आज भारत बन गई है। और नौकरियों का स्वरूप बदला है। मैंने कई बार पहले भी बताया, एक बार आपके समक्ष भी रखता हूं। अब देखिए, एनटीपीसी का अगर एक पावर प्लांट बने, कोयले के ऊपर थर्मल पावर प्लांट, तो कुछ मात्रा में वो नौकरियां देगा, वो दिखेगा, आंकड़ों में दिखेगा, क्योंकि बड़ा पावर प्लांट है, उसमें फॉर्मल सब लोगों की एंगेजमेंट होगी। उतनी ही बिजली जब मैं सौर ऊर्जा से बनाता हूं, सोलर पावर, तो लगभग 15 गुना लोग उसमें रोजगार पाते हैं, लेकिन वो किधर फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में नहीं, अनऑर्गेनाइज्ड में, ये डिस्ट्रीब्यूटेड में हो जाता है। लेकिन आज पूरे दुनिया में नौकरी का स्वरूप आज सरकारी नौकरी, दे आर नॉट क्वालिटी जॉब्स, राइट? दे आर जस्ट, ये आप एज्यूम कर रही हैं। आज मैं पीछे जस्ट सर्वाइवल, मैं नहीं मानता हूं ऐसी बात है। पीछे एक लड़का मिला, उसने घरों की छतों के ऊपर सौर ऊर्जा के लगाने का काम एक स्टार्टअप के रूप में शुरू किया, और जिस तेज प्रगति कर रहा था, जिस तेज गति से, क्योंकि आखिर लोगों को समझ में आने लगा कि आप 3-4 रुपए में, 3-4 रुपए में आपको आगे 25 साल तक बिजली मिलेगी, तो लोग बड़े पैमाने पर उससे जुड़ना चाह रहे हैं। आपको पता है, सौर ऊर्जा 10 गुना वृद्धि हुई है पिछले 5 सालों में, 10 गुना, 10 टाइम ग्रोथ। ओके, what are your concrete plans in the sense of, you know, that this is going to result in these jobs? ये तो आप कह रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, इससे जॉब सोलर एनर्जी से, स्वच्छ भारत से, उससे कोई कॉन्क्रीट है कि इससे इतने नौकरियां है ना? कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, हाईवे डेवलपमेंट आज विश्व में सबसे तेज गति से भारत में हो रहा है, तो हाईवे क्या बिना आदमियों के बनते होंगे? रेलवे में मैंने अभी अभी बताया, अनमैन लेवल क्रॉसिंग्स हाउस में बताया, आज 0 हो गए। 8,500 थे लगभग 1.5 साल पहले। अब जब ये हटाए तो क्या लोगों को नौकरी नहीं मिली? हटाने के काम में जो खर्चा हुआ उसमें लोगों को काम नहीं मिला। जो मैन किए गए गेट्स, उसमें क्या लोग नौकरी में नहीं आए? आपके पास आंकड़े नहीं है इन नौकरियों के? इज दैट व्हाट यू आर सेइंग, दैट अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग विशेषता रहती है। रेलवे के पास तो आंकड़े हैं, और स्वाभाविक रूप से मैंने पहले 1.5 लाख 1,51,000 नौकरियां तो अभी चल रही हैं, जो थोड़े ही समय में लोगों को मिल जाएंगी। जो टेस्ट वगैरह है वो खत्म होने आ रहा है। उसी के अलावा आगे 1-1.5 वर्ष में 2,20,000 और नौकरियां देने का भी रेलवे ने ऐलान किया, जिसमें पहली बार केंद्र सरकार की नौकरियों में 10% गरीब वर्ग के जो लोग हैं, जिनको पहले आरक्षण नहीं मिलता था, उनको अतिरिक्त आरक्षण, बिना ओबीसी SC ST के आरक्षण को हमने बरकरार रखा है। उसके अतिरिक्त जो गरीब वर्ग है उसके लिए 10% आरक्षण अब रेलवे में रख के करीब 2.25 लाख नौकरियां शुरू हो रहा है प्रोसेस। इसका जेस्टेशन पीरियड बहुत है ना, बाय द टाइम इट कम्स इनटू इफेक्ट इट्स गोइंग टू टेक व्हाट, सोचे अ ईयर 2 इयर्स। कोई सोचे कि इतने वर्षों तक, 65 वर्षों तक, आखिर ऑर्गेनाइज सेक्टर की सीमाएं रहती हैं कितनी नौकरियां मिलेंगी। नॉर्मली हर इकोनॉमी विश्व भर में
खुदरा व्यापार है, खुदरा व्यापारी बताते हैं आज हमारी 5 लाख दुकानें हैं। आज अलग अलग क्षेत्र में केटरर हैं, केटरर बताते हैं कि हम 2 करोड़ परिवारों को काम देते हैं। आप जिस टेक्सटाइल के क्षेत्र में देखिए, वो बताते हैं कि 2.5 करोड़ लोगों को हम रोजगार देते हैं। जेम एंड ज्वेलरी का क्षेत्र बोलते हैं हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं। तो कई बार तो मैं देखता हूं कि सब आंकड़े जोड़े तो शायद ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको कुछ ना कुछ एक काम करने का अवसर ना मिलता हो। आप बताइए स्मिता जी, कई बार देखा होगा आपने कि हमको कभी ड्राइवर चाहिए घर में गाड़ी चलाने के लिए, ऑफिस में, कई बार हमें घरेलू कामगार चाहिए, तो कितनी मुश्किल होती है मिलने। तो मुझे लगता है तकलीफ है, लेकिन तकलीफ को सामना करते हुए उसके सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे, बजाय के सिर्फ उसकी आलोचना करके कोई कॉन्क्रीट विजन ना हो। चलिए आलोचना पे आते हैं। ये जो मिनिमम इनकम गारंटी राहुल गांधी ने किया था, उसके बारे में आपके पार्टी के बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया, वो जो कांग्रेस का जो थीम था। लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि आपके बहुत सारे स्कीम्स जो आपने अनाउंस किए हैं, चाहे वो फार्म इनकम को लेके है या फिर मिडिल क्लास को लेके, दैट सीम्स लाइक, एंड वन ऑफ योर कॉलीग्स हैज इवन कॉल्ड इट दैट हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, यानी कि कांग्रेस के कैंप में जाके, उनके खेमे में जाके वहां से आइडिया उठा के। जी ऐसा है, ये हमने कोई इनकम गारंटी तो दी नहीं है, इसमें हमने तो कोई लैंड होल्डिंग के हिसाब से या कुछ उसको मापदंड नहीं बनाया। हमने हर ऐसा सीमांत और छोटा किसान परिवार जिसकी छोटी लैंड होल्डिंग है, सभी को सामान्य 6,000 रुपए सालाना देने का निर्णय लिया। और मैं फिर एक बार कहता हूं, ये सम्मान है किसानों का जिन्होंने इस देश को आत्मनिर्भर बनाया, फूड सिक्योरिटी दी, खाद्य में आत्मनिर्भर बनाया। लेकिन आपको एक जरूर कहना चाहूंगा कि आप बार बार कह रहे हैं सम्मान, इट लुक्स लाइक यू आर टोनिंग इट डाउन। आप इन प्रैक्टिकल नहीं, आई एम टोनिंग इट अप। 75,000 करोड़ रुपए किसानों के लिए, तो किसी वर्ष में, वर्ष छोड़ो, किसी पीरियड और टेन्योर ऑफ गवर्नमेंट में किसी ने, हाँ, तो फिर सम्मान तो ऐसे लगता है जैसे लिफाफा डाल के शगन का देते हैं। क्योंकि उन्होंने वास्तव में इस देश के लिए इतना बढ़िया काम किया है, तो सम्मान नहीं करना चाहिए हमें उनका। मैंने तो आज टैक्स पेयर्स का भी सम्मान किया है। आप टैक्स भरती हैं स्मिता जी, मैंने सबसे ज्यादा तो आपका शुक्रिया किया है कि आपके टैक्स से उस गरीब महिला को कुकिंग गैस मुफ्त में मिली, कनेक्शन मिला। आपके टैक्स के दिए हुए पैसे से उस बच्चे के घर में आज बिजली आई है। आपके दिए हुए पैसे से उस माता बहन को सूर्योदय से सूर्य ढलने तक शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा शौचालय। तो ये सारे आइडियाज टोटली बीजेपी आइडियाज है, एनडीए आइडियाज है, इसमें कोई राहुल गांधी के आइडियाज नहीं है। अगर आपको देखना है तो ये आइडिया तो अरविंद सुब्रमण्यम ने भी 3 साल पहले रखा था, और इतिहास में पहले जाओगे तो ये आइडिया 40 साल पहले भी रखा गया है भारत में ही, और विश्व में जाओगे तो ये आइडिया कई दशकों पहले रखा गया है। तो आइडिया कार्यान्वित करने की क्षमता, हिम्मत और साथ में फिस्कल प्रूडेंस रखना, मतलब आर्थिक स्थिति को हमने बिगड़ने नहीं दिया। आप ये देखिए कि ममता बनर्जी कह रही है आर्थिक स्थिति इस मुल्क की इतनी खराब है, इतनी बदतर है कि इमरजेंसी वाला हाल हो गया है। सो कैन यू गिव मी एन एक्सप्लेनेशन दैट, क्या ये आप मानते हैं? तो एक्सप्लेनेशन उनको देना पड़ेगा। नहीं, क्या आप मानते हैं? मैं समझता हूं हर मापदंड पे ये सरकार खरी उतरी है। महंगाई कहां 10% थी, आज 4.5% पे आई है। अगर महंगाई अकेले कांग्रेस के जमाने की तरह रहती तो आज आपके घर का फैमिली बजट 35-40% बढ़ गया होता। अगर वित्तीय घाटा उनके समय जैसा चलते रहता तो आज इतना ब्याज का बोझ सरकार पे होता कि कोई विकास के काम नहीं कर सकती थी। अगर उन्हीं की तरह पुराने हिसाब से सब सरकारी जो स्कीम्स हैं इंप्लीमेंट होती तो 100 रुपए में से 85 रुपए तो बिचौलिए और भ्रष्टाचार में चले जाते, गरीब को तो 15 रुपए ही मिलता जो उनके खुद के प्रधानमंत्री जिसको स्वीकार करते। The former finance minister Mr. Chidambaram has said that this wasn't a vote on account, it was an account of votes. And many of them have said that this is more of a BJP manifesto, it's an election oriented, some have called it Jumla. Do you see this as just an extension of your manifesto? अब लॉजिकली देखिए, आखिर जब हमने स्वच्छता की बात की और लगभग 9-10 करोड़ शौचालय बनाए तब तो कोई इलेक्शन नहीं था। जब हमने कहा कि सब गांव-गांव तक, हर घर तक बिजली देंगे और करके दिखाया तब तो कोई इलेक्शन नहीं था। जब हमने कहा कि कुकिंग गैस
महिलाओं को 400 सिगरेट जितना धुआं क्यों लेना पड़े, उनके बच्चों को क्यों सफर करना पड़े। तब हमने जब 6 करोड़ लोगों को मुफ्त में कुकिंग गैस देने का निर्णय लिया और करके दिखाया, और अब बढ़ा के 6 को 8 कर दिया है, जो अगले 1 वर्ष में देश में हर परिवार को गैस मिल जाएगी। ये सब तो एक लगातार 4 साल की कड़ी है देश के हर व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की। हर गरीब, हर मध्यम वर्गीय, हर किसान, हर असंगठित क्षेत्र के मजदूर के जीवन में कैसे एक अच्छा भविष्य बने, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के लगातार 4 साल के काम करने का ढंग है। काम छोटा मोटा इंक्रीमेंटल नहीं होता है, बड़े स्केल पे होता है और सफलतापूर्वक ईमानदारी से होता है। So in your speech you said, and even now you're saying that you have walked the talk, whatever you promised you have delivered. If that was happening at a regular pace, was there any need for those 2 sledgehammer blows to the Indian economy, which is demonetization and the poor implementation of GST? And do you at this moment accept अगर वो धक्के ना पहुंचते तो इकोनॉमी बहुत आगे बढ़ती? On the contrary, madam. You don't agree? Absolutely not. आज डिमोनेटाइजेशन नहीं होता तो आपको क्या लगता है कि 20-20%, 18%, 20% वृद्धि होती हर एक टैक्स, इनकम टैक्स के अंदर? अगर हम जीएसटी जैसा एक अच्छा कानून जो देश को एक मार्केट नहीं बनाता है, तो आज भी डीजल ट्रक की लाइनें सब जगह खड़ी होती, चेक पोस्ट होते, टोल नाकों के ऊपर लंबी लंबी कतार में भ्रष्टाचार चल रहा होता। आखिर पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, इम्प्लीमेंटेशन तो सभी स्टेट्स और केंद्र ने मिलकर सामूहिक एक जीएसटी काउंसिल के निर्णय के हिसाब से प्रोसीजर बना, प्रोसेस बना, रेट्स लगभग हर एक चीज के पुराने के हिसाब से कम रखे गए। उसके बाद 400 से अधिक रेट्स और कम घटाए गए। उसके बावजूद जब टैक्स कलेक्शन इतना अच्छा हो रहा है, ये दर्शाता है कि जीएसटी एक सफल प्रयोग रहा है, देश को आगे के लिए तैयार किया है कि तेज गति से विकास कर सके। और ये पुअर इंप्लीमेंटेशन नहीं है। इतना बड़ा बदलाव स्मिता जी, विश्व में इतना बड़ा देश कोई नहीं है जिसने इतना बड़ा बदलाव कभी आज तक करने का साहस भी किया। भारत के इतिहास में इतना बड़ा बदलाव इंडिपेंडेंस के बाद ये पहला हुआ है। और स्वाभाविक है, इसमें थोड़ा बहुत जब नया होता है तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं, पर मैं फिर एक बार धन्यवाद दूंगा हमारे सब टैक्स पेयर्स को, सब व्यापार के से जुड़े और उद्योग से जुड़े भाई बहनों को, जिन्होंने इसको अपनाया, बड़े दिल से अपनाया। थोड़ी बहुत कष्ट भी हुई तो कष्ट सहते हुए अपनाया। आज उसका लाभ सीधा उनको मिल रहा है, जब टैक्स के रेट्स भी घटते जा रहे हैं, जब सरल होते जा रहे हैं। अब आपको मैंने बताया 93% ऑफ ऑल टैक्स पेयर्स, जीएसटी टैक्स पेयर्स, 5 करोड़ से कम जिनका टर्न ओवर है, अब उनको 3 महीने में एक ही रिटर्न भरना है। इसी प्रकार से अब सर्विस प्रोवाइडर, समझो कोई आपका कैमरामैन है और यहाँ पे रेंट पे आपको कैमरा दे रहा है शो के लिए, और साल में इसकी टर्नओवर 50 लाख से कम है, इसको मात्र 6% सर्विस टैक्स देना पड़ेगा। एक शान से या जीएसटी देना पड़ेगा, एक शान से ईमानदार जीवन जिएगा। आपके लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है। देश ईमानदार रास्ते पे चले, ये पूरे देश के लिए अच्छा है। और ईमानदार लोगों की सम्मान करना, इसी के हेतु प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज 5 लाख तक के सभी करदाताओं को एक तरीके से इनकम टैक्स से मुक्त कर। I'm not going to let you go without asking about your other portfolio, about railways and your other pet project. Huge outlay, 1.58 lakh crore. Now, in this capex, how much is for the jobs and how much is for the modernization? If you could roughly tell me, because you have talked about thousands of jobs that the railways are, lakhs of jobs. तो इसमें से कितना है जो वो सैलरीज में जाएगा? ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हाँ, तो ये सिर्फ तो रूटीन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाती हैं। हाँ। और वो तो निर्धारित जो पोस्ट है उसके हिसाब से भरी जाती है। ये पूरा कैपेक्स है। ऐसा ही कैपेक्स आपने सेफ्टी के लिए, सेफ्टी हो, पैसेंजर कंफर्ट हो, विस्तार करने की जरूरत। आपको जान के हैरानी होगी कि पिछले 50 सालों में जो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रूट्स है, वो मात्र 25% बढ़े हैं, और जो पैसेंजर और फ्रेट ट्रैफिक है वो 1500% बढ़ा है। मतलब 15 गुना हो गया। तो स्वाभाविक है कि जर्जर हालत में चली गई रेलवे। हमने पहली बार इस सरकार ने पिछली सरकार के निस्बत लगभग 2-2.5 गुना निवेश रेलवे में किया, और उस निवेश के कारण ही पिछला वर्ष सबसे सेफेस्ट ईयर था इंडियन रेलवे का। इसी तरीके से आगे चल के एयरपोर्ट्स में, हवाई सेवाओं में, रेलवेज में, वाटरवेज में, पोर्ट्स में,
डिजीवेज में, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर एक में निवेश बहुत तेज गति से हो रहा है। स्वाभाविक है, जब इतना बड़ा कैपेक्स होगा, इतना बड़ा निवेश होगा, तो लाखों करोड़ों लोगों को उसमें काम करने के अवसर मिलेंगे, रोजगार के अवसर मिलेंगे। अब सिर्फ आंकड़ों में नहीं, लेकिन जो आत्मा है काम की, उसमें जाती है। और मैं समझता हूं आज देश में जो एक लोगों के मन में विश्वास है, वो विश्वास अटल है। विश्वास है कि कुशल नेतृत्व देश चला रहे, और उस कुशल नेतृत्व का समर्थन ये देश का हर नागरिक करेगा, ऐसा हम सबका पूर्ण विश्वास। लास्ट क्वेश्चन सर, आपने कहा मैंने नींव रखी है, इमारत अभी बनाना बाकी है। You've laid the foundation and the building needs to be done. How many terms do you need? 2 terms, 3 terms? How many are you looking at it? I need a genuine answer from you. Don't. आप देखिए कि 5 साल के अंदर जिस ह्यूज पेस पे, एक्सपोनेंशियल पेस पे प्रगति हुई है, आप मुझे बताइए कि आखिर महिलाओं को टॉयलेट चाहिए, ये क्या पहले की सरकारों को नहीं मालूम था? फिर भी 3 में से 1 ही महिला को टॉयलेट मिला, 2 को फिर भी खेतों में जाना पड़ता था। क्या आखिर पहले की सरकारों को चिंता नहीं थी कि गरीब लड़के को, बच्चे को, हमारे बेटी बेटियों को बिजली पे पढ़ के आंखें भी खराब होगी, पढ़ भी नहीं पाएंगे और धुआं अलग लेंगे? क्या पहले की सरकारों ने 50 साल लगा दिए 12 करोड़ गैस कनेक्शन देने में? हम एक 5 साल में 13 करोड़ देने में सफल हुए। क्या ये छोटी नींव रखी गई है? और प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मानना है कि एक ईमानदार व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, एक ईमानदार माहौल, एक स्वच्छ भारत, एक भारत जहां सब डिजिटल वर्ल्ड से भी कनेक्टेड है, फाइनेंशियल इंक्लूजन भी हो और रोजमर्रा की चीजों के लिए त्रस्त ना होना पड़े। जब तक ये बेसिक एमेनिटीज नहीं होंगी तो कैसे देश प्रगति कर सकता है? कैसे इस देश का सामान्य आदमी एक अच्छा जीवन जी सकता है? और मैं समझता हूं 5 साल में जो बड़े पैमाने पे विकास और विकास का लाभ देश के कोने कोने तक, चाहे वो उत्तर पूर्व हो या वो पूर्वी इलाका हो भारत का, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या झारखंड और छत्तीसगढ़ के ट्राइबल एरियाज हो, चाहे वो कोस्ट पे रहने वाले, काम करने वाले फिशरमैन हो, चाहे वो उस समाज का वर्ग हो जो आज भी नोमैडिक ट्राइब्स के रूप में घूम रहे हैं, हर वर्ग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। उनके जीवन को और अच्छा बनाने के लिए बेहतरीन और बहुत ही साहसी कदम उठाए हैं, और मुझे पूरा विश्वास है समझदार भारत की जनता उनके इस निष्ठावान काम को, उनके इस संवेदनाशील काम को पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से पहचानेगी। धन्यवाद पीयूष जी। थैंक यू।